Welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today we'll also be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But do remember that we don't address company-specific queries. You can call us on telephone numbers 2331 4444, 2371-7106 and 2371-7117. But please don't forget to prefix 011, the STD code, if you are calling from out of Delhi. Well, I am Nishit Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Nikhil Kumar. And to answer our listeners' queries, today we are joined in our studios by the financial expert, Dr. Yamini Agrawal. Yamini, welcome to this show. Thank you. नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। प्रतिदिन की तरह आज भी हम ताजा आर्थिक समाचार आप तक लाएंगे। कार्यक्रम में आज आपके सवाल भी लेंगे। आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े किसी भी विषय पर आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। आपको बता दें कि कार्यक्रम में किसी विशेष कंपनी या स्टॉक के बारे में जानकारी नहीं दी जाती है। प्रश्न पूछने के लिए आप इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 2331-4444, 2371-7106 और हमारा तीसरा नंबर है 2371-7117। और सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस के साथ में है निश्चित। Key domestic stocks witnessed modest gains. Sensex closes near 57,600 points. Nifty settles above 17,200. Global stocks trade mixed and Brent crude prices slip but remain above $116 per barrel. घरेलू शेयर बाजार में मामूली बढ़त का रुख रहा। सेंसेक्स चढ़कर 57,600 के आसपास और निफ्टी 17,250 के ऊपर जाकर बंद हुआ। वैश्विक शेयर बाजारों में मिला जुला कारोबार और ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत में गिरावट, लेकिन $116 प्रति बैरल से ऊपर। सेंसेक्स की बात करें, वैश्विक शेयर बाजारों में मिले जुले रुख के चलते सेंसेक्स और निफ्टी में आज मामूली बढ़त दर्ज की गई। सेंसेक्स 57,600 अंक के आसपास और निफ्टी 17,200 स्तर के ऊपर जाकर बंद हुए। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.40% की बढ़त यानी कि 231 अंक चढ़कर 57,593 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.40% की वृद्धि से 69 अंक ऊपर आकर 17,222 पर आ गया। विस्तृत बाजार की बात करें तो बीएसई मिड कैप सूचकांक 0.40% नीचे आ गया, जबकि स्मॉल कैप सूचकांक 0.53% की गिरावट के साथ बंद हुआ। The Sensex and the Nifty today witnessed modest gains amid mixed cues from global share markets. The Bombay Stock Exchange Sensex closed near 57,600 points, while the National Stock Exchange Nifty ended above 17,200 levels. The Sensex climbed 231 points or 0.40% to close at 57,593. The Nifty was also up 69 points or 0.40% to settle at 17,222. In the broader market, at the Bombay Stock Exchange, the mid-cap fell 0.40% and the small-cap index ended 0.53% down. In the Sensex-backed 20 companies logged gains, while 10 declined. Bharti Airtel gained the most as they rose 3.4%, followed by Axis Bank, which added 2.1%. ICICI Bank climbed 1.6% and ITC added 1.4%. On the other hand, Nestle India and Dr. Reddy's Lab both fell 1.8%. HDFC slipped 1.6% and HCL Tech ended 1.4% down. In the sectoral indices at the Bombay Stock Exchange, 13 indices gained while 6 witnessed losses. Oil and gas index gained 1.7% and the Bankex and energy rose 1% each. On the other side, consumer durables plunged 0.6%, while healthcare and capital goods sectors indices ended 0.5% down. The overall breadth of the BSE trade was negative, as shares of 1,121 companies gained, while 2,399 fell. Shares of 144 companies remained unchanged. And we are joined in by our first caller, Ram Avatar from Kolkata. Ram Avatar ji, welcome to the show. जी नमस्कार। नमस्कार। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता था। जस्ट पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं ब्लाइंड हूँ, दृष्टिहीन हूँ। जी 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 सवाल पूछें। आज के इस विज्ञान के युग में हम लोग यदि डीमैट अकाउंट खोलते हैं या शेयर का लेन देन या ये सब करते हैं
तो हम लोगों के लिए क्या फैसिलिटीज गवर्नमेंट के या आप यहाँ स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से है? जी देखिए, डीमैट अकाउंट आप खोल सकते हैं और आप ट्रेड भी कर सकते हैं। जो डीमैट अकाउंट आप खोलते हैं उसके साथ ट्रेडिंग अकाउंट आपको मिलता है, जिसके अंदर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। आपके लिए स्पेसिफिक नहीं, पर जो ज्यादातर सभी कस्टमर्स के लिए अवेलेबल होती है, उसके अंदर रिसर्च अवेलेबल होती है और बहुत सारे जैसे रेडियो हैं, उसके माध्यम से आप जानकारी पा सकते हैं कि किन सेक्टर्स में निवेश कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट की क्या स्थिति रहती है। दिल्ली से रजत हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। हेलो। हाय सर, वेरी गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग रजत, आपका प्रश्न। Sir, my question is, actually my mother is, just retired and she will be getting a corpus of somewhat around 60 lakhs, right? And nowadays, as you see, interest rates are very low. So what do you recommend for her, to get the better yield out of her, the retired corpus which she will be getting? Right. जी देखिए, आप बहुत सारी स्कीम्स में निवेश कर सकते हैं। जैसे सीनियर सिटीजन स्कीम है, उसमें 15 लाख तक करीब जो पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स हैं उसके अंदर निवेश कर सकते हैं और आरबीआई फ्लोटिंग बॉन्ड्स हैं उसमें भी निवेश कर सकते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अब रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए भी खुलने वाली हैं, तो आप अपना पैसा अभी थोड़ा सा रुक करके गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी लगा सकते हैं। और अगर आप लगाना चाहें स्टॉक मार्केट्स में, तो कुछ पोर्शन आप म्यूचुअल फंड्स के द्वारा भी लगा सकते हैं। Yes, it also depends, Rajat, on the risk appetite that you are or your mother is willing to take, because there are certain mutual funds like the debt funds which are actually very nice, which can give you more returns as compared to the traditional, instruments which you have for in banks or and in other post offices and other revenues, right? So you can go for that as well. Next caller is Ratnakar from Mumbai. Ratnakar ji, welcome. हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ, मेरा सवाल है कि अभी ये मार्केट तो वैसा 57,000 पर है जी, ऐसे ऑलरेडी इट इज हाई, तो ऐसे इसमें हमने कौन सा सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के लिए अपने अपॉर्चुनिटी है? और दूसरा सवाल है कि जो अभी गैस का प्राइस भी पर सिलेंडर 50 रुपीज बढ़ गया, तो अभी ये ऐसा कितना बढ़ सकता है और इसका कुछ अंदाजा तो नहीं आ रहा है, लेकिन कॉमन मैन के लिए ये बहुत तकलीफ की बात है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? जी देखिए, जिन सेक्टर्स में आप निवेश कर सकते हैं वो आईटी, फार्मा, एफएमसीजी और कैपिटल गुड्स, ये कुछ सेक्टर्स हैं जो ग्रीन सेक्टर्स माने जाते हैं, जिनमें निवेश अभी देखा जा रहा है कि हो रहा है और आगे जाकर के लंबे समय पर अच्छे रिटर्न्स देंगे। जहां तक इन्फ्लेशन का सवाल है, वो काफी हद तक इम्पोर्टेड है, क्योंकि क्रूड ऑयल की प्राइसेस लगातार बढ़ रही हैं रशिया और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के, जिसकी वजह से पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस बढ़ रही हैं और चीजों की प्राइसेस एलपीजी वगैरह की भी बढ़ रही हैं। जैसे ही कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होता है, माना जा रहा है कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस स्टेबलाइज करेंगी और इन्फ्लेशन की गति में कमी आएगी। और हमारे अगले कॉलर है जितेंद्र खजुराहो मध्य प्रदेश से। हेलो जी, नमस्ते, और यामिनी मैम को भी नमस्ते। जी, आपका सवाल क्या है? मैम, ये कि बदलते भू राजनीतिक परिदृश्य में जिस तरीके से लोकल करेंसी में ट्रेडिंग को बढ़ावा मिल रहा है, इससे जो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार है वो भी कमजोर होगा, जिससे करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा, तो इससे ग्लोबल इकोनॉमी को और इंडियन इकोनॉमी किस रूप से प्रभावित होगी? जी देखिए, लोकल करेंसी में ही ट्रेडिंग अलाउड होती है और जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उसमें ट्रेडिंग नहीं परमिटेड होती। जो एक्सपोर्ट्स आप करते हैं उसके लिए आपको फॉरेन एक्सचेंज जो है आप अर्न करते हैं, और जब आप इंपोर्ट्स करते हैं तो आपको फॉरेन एक्सचेंज देना पड़ता है। ट्रेडिंग अभी भी इंडिया के अंदर जितनी भी होती है वो लोकल करेंसी में होती है, और इंपोर्ट्स की वजह से क्योंकि हमारे इंपोर्ट्स हमारे एक्सपोर्ट्स से ज्यादा हैं, हम वहां पे करंट अकाउंट डेफिसिट्स होते हैं। पर इस बार एक्सपोर्ट्स ने काफी अच्छा आंकड़ा पार किया है, जो $400 बिलियन के आसपास है, जो एक अपने में एक माइलस्टोन है। Yeah, next caller is Gurunath from Thane. He's been a regular caller. Gurunath ji, welcome. जी सर, नमस्कार। नमस्कार। मैडम, एमिली मैम को भी नमस्कार। जी नमस्कार। मैम, मेरा क्वेश्चन है, मैम, ये जो हमारे मार्केट में अभी गिरावट का दौर चालू है, मैडम, ये कौन सा ऐसे फैक्टर है कि डोमेस्टिक रीजन है और ये जो फेडरल रिजर्व में जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की जो
बात कही थी, और ये जो रशिया और यूक्रेन का जो क्राइसिस है, तो ऐसे कौन से फैक्टर है कि मैडम ये जो मार्केट गिरता ही जा रहा है? अभी देखा जाए तो FIIs में 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा पैसा निकाल दिया गया है। तो मैडम ये आगे क्या रोक रहेगा अभी मार्केट का फिलहाल? जी देखिए, जियोपॉलिटिकल रिस्क हैं क्योंकि रशिया और यूक्रेन की कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जिसकी वजह से जो माना जा रहा है कि रशिया सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है ऑयल का, उसके ऊपर असर पड़ेगा उसके एक्सपोर्ट्स पे ऑयल के, और जो क्रूड ऑयल की प्राइसेस हैं वो काफी हद तक बढ़ जाएंगी। जो अभी हमने देखा था $139 पर बैरल तक भी पहुंच चुकी थी, अब जाकर के कम हुई है 116 बैरल पर। उसकी वजह से जो है महंगाई का दर वो काफी बढ़ जाएगा, सिर्फ हमारे देश में नहीं संसार भर में, जिसके कारण संसार में और हमारे देश में भी दिक्कतें पैदा होंगी। ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है जिसको फेस करते हुए ज्यादा और चैलेंजेस आएंगे, जैसे कि आपका जो रियल ग्रोथ रेट है वो कम हो जाएगा, जिसमें प्रोजेक्शंस माना जा रहा है फिच के द्वारा और बाकी के द्वारा 8.5% पे लाई गई हैं 9.5% के बदौलत। ये भी देखा जा रहा है कि जो FIIs हैं वो अपने पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं, क्योंकि जो ट्रेजरी बिल्स हैं US के, वो 2 साल के जो ट्रेजरी बिल्स हैं उनका जो रेट है वो लॉन्ग टर्म 10 साल के ट्रेजरी बिल्स के आसपास आ गया है, सिर्फ 20 बेसिस पॉइंट्स का डिफरेंस है, और क्योंकि शॉर्ट टर्म में ज्यादा बेनिफिट्स हैं इसलिए FIIs वहां पे निवेश कर रहे हैं। दिल्ली से राजीव हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। हेलो। हाँ राजीव, आपका प्रश्न क्या है? जी नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, जैसे कि बोला जाता है कि अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो लंबे टर्म के लिए आपको निवेश करना चाहिए, 6-7 साल का टाइम होराइजन रखना चाहिए। तो और साथ में ये भी बताया जाता है जनरली कि अपना गोल जो है वो एक तय रखें कि आपको जरूरत कितने सालों बाद पड़ेगी। तो मैंने 6-7 साल से इन्वेस्ट किया और मेरे को इस फाइनेंशियल मीन्स अभी अप्रैल मई के आसपास मुझे वो जरूरत था जो मेरा गोल था, बट ड्यू टू सम दिस जियोपॉलिटिकल रीजन जो मेरा इन्वेस्टमेंट या जो मेरा अभी था उससे काफी मैं नीचे आ गया हूँ, जो एक्यूमुलेटेड एसेट्स थे तो उससे नीचे आ गया हूँ। तो ऐसे में लॉजिक दिया जाता है कि आपको गोल ओरिएंटेड ही होना चाहिए। तो इसके साथ मैं थोड़ा समझना चाहता हूँ कि क्या ये हर जगह एप्लीकेबल रहता है, सही रहता है, या फिर मतलब इंडिविजुअल टू पर्सन? जी देखिए, ज्यादातर व्यक्ति को अपने गोल के हिसाब से निवेश करना चाहिए, और अगर उसका गोल मीट करता है तो उस समय उसको निवेश निकाल लेना चाहिए, पर इस पे भी निर्भर करता है कि उसकी टाइमिंग क्या है। जैसे आपने कहा कि जिस समय आप निकालना चाहते थे उस समय जो है परिस्थितियां ऐसी नहीं थी कि आप निकाल सकें जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से। उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप अपना होराइजन बढ़ा सकते हैं और वेट कर सकते हैं कि जब वो आपका गोल मीट करता हो तब आप पैसा निकालें, क्योंकि मार्केट ज्यादातर वॉलेटाइल रहती हैं और मूवमेंट्स रहती हैं। प्राइमरी ट्रेंड्स देखना जरूरी है कि अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, और सेकेंडरी मूवमेंट्स में बाय और सेल करना चाहिए। एक बात और है यामिनी, जैसा राजीव बता रहे थे कि ये 6 या 7 साल से लगभग निवेश कर रहे हैं, तो अगर हम 6-7 साल के होराइजन को भी देखें, ठीक है अभी यूक्रेन रशिया क्राइसिस में थोड़ा सा मार्केट अभी डाउन हो गया है, बट इवन देन आई थिंक दैट इफ ही हैज बीन इन्वेस्टिंग द थिंग इन म्यूचुअल फंड्स इन वाया SIP for, let's say, we are assuming this, that he has been investing in the SIP thing for the past 6 or 7 years, still I think his corpus would be in the positive only and not negative. Of course, it could not have been that spectacular as he would have wished for the moment because of certain, exigencies that we are witnessing the world over. But still, I think, अगर राजीव जी अगर आप पिछले 6-7 साल से निवेश कर रहे हैं, जैसा कि हमारा तजुर्बा है, तो फिर भी आपका कॉर्पस पॉजिटिव में तो जरूर होगा। हाँ, ये जरूर है कि थोड़ा सा टाइमिंग अभी आपके लिए बहुत ज्यादा वैसा फेवरेबल नहीं है, तो थोड़ा सा इसमें भी देखना पड़ेगा। एंड ऑल्सो horizon is one thing which one must keep in mind while investing in mutual funds, and that is always there. And now it's time to slip into a quick commercial break, but do stay tuned in because we have lots and lots coming up on the other side of the break.
उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी। आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से। लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान। अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग। डायल कीजिए 8700014242। नंबर एक बार फिर नोट करें, 8700014242। स्वागत है आप सभी श्रोताओं का मार्केट मंत्रा में एक बार फिर से, और एशियाई शेयर बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तो एशियाई शेयर बाजार में आज मिला जुला रुख देखा गया। जापान की निक्केई 225 के कारोबार में 0.7% की गिरावट दर्ज की गई, जबकि हांगकांग के हैंगसेंग में 1.3% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। दक्षिण कोरिया का कॉस्पी बिना किसी विशेष उतार चढ़ाव के बंद हुआ। चीन के शंघाई कंपोजिट सूचकांक में आज 0.1% की वृद्धि देखी गई। उधर सिंगापुर का स्ट्रीट्स टाइम्स सूचकांक 0.5% चढ़कर बंद हुआ। यूरोपीय बाजारों की बात करें तो आज दिन के कारोबार में बढ़त देखी गई। फ्रांस के कैक में 1.9% की वृद्धि दर्ज हुई। जर्मनी का डेक्स 2.2% ऊपर आ गया। वहीं लंदन का FTSE 100 0.7% की बढ़ोतरी के साथ कारोबार कर रहा था। यामिनी जी, आज हम देख रहे हैं कि एशियाई शेयर बाजारों में हमें बढ़त देखने को मिल रही है, और कहीं न कहीं उसका असर हमारे घरेलू शेयर बाजार पर काफी हद तक पड़ता ही है। तो ऐसे में क्या जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए कैसी स्थिति बन सकती है? जी देखिए, मार्केट्स की स्थिति ओवरऑल कंसोलिडेशन के फेज में है और एक नैरो बाउंड रेंज में जो है ट्रेडिंग हो रही है। माना जा रहा है कि जो 200 डे मूविंग एवरेज है उसमें देखा गया है कि जो स्टॉक्स हैं उसके कम से ही ट्रेड कर रहे हैं और ओवरऑल एक बियरिश टोन में ही जा रहे हैं। पर ये कहना कि वो कोई डायरेक्शन स्पेसिफिकली दे रहे हैं वो शायद अभी सही नहीं होगा, पर कंसोलिडेशन का फेज जारी रहेगा जब तक कॉन्फ्लिक्ट का रेजोल्यूशन नहीं होता। Before we move ahead, we'd like to remind our listeners that this is the Monday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on economic news, of course. And today we are also taking calls from you on any queries that you may have on the economic, business and stock market. The numbers, once again, 2331-4444, 2371-7106 and 2371-7117, and do not forget to prefix 011, the STD code for Delhi, if you are calling from out of Delhi. Well, Yamini, we were discussing about the Russia-Ukraine crisis, and also sometime back we were discussing about the Asian markets. There are reports that Shanghai, the commercial hub in China, is under a strict lockdown because of this pandemic. So obviously it will be having its far-reaching, consequences the world over, and especially in the Asian markets. So how do you see the Shanghai shutdown, affecting the market, especially when we see that supply chain bottlenecks would be there, if at all it continues? Well, already the world is facing the problem of inflation because of the geopolitical risks that are there because of Ukraine and Russian crisis. Mm-hmm. Also, we do see that if there is a slowdown in China because of the lockdowns, since China is a global supply chain, major important component of the global supply chain, mm-hmm. it will have an immediate impact on the supplies, and it will have an immediate effect over the inflation because the supplies will fall short and the prices would rise. So overall, the slowing down of China will have a serious impact on the overall economic situations of the world markets. जी, दिल्ली से मुरली फोन लाइन पर जुड़े हैं हमारे साथ। हेलो मुरली। हेलो मुरली जी, आपका प्रश्न क्या है? So this is regarding what ma'am was talking about, the recession in US, okay, the inverse interest, what is showing up between 2 years and 10 years. What is going to be the impact? Because this is may impact after a year or so. Could you elaborate on that? See, what we were talking about was an inverted yield curve, which is likely to be taking place in case the 20 basis points difference actually converts into negative. And the inverted yield curve basically will indicate that in long term, people are not interested in investing, and people are invested in investing in the short term, which does indicate what is called a state of recession in the economy.
And if there is recession in the economy, automatically all the activities will slow down and the GDP growth rate will come down and there would be more unemployment. So all the factors that feed in the recession would be a part of that. Our next caller is Jitendra from Noida. Jitendra, welcome to the show. हाँ सर, नमस्कार। मार्केट मंत्रा टीम को मेरा नमस्कार, जावेद जी को मेरा नमस्कार। जी नमस्कार। मैडम, मैं ये जानना चाहता था कि आने वाले 3 से 6 महीने में ऑटो सेक्टर के बारे में क्या राय है आपकी? ऑटो सेक्टर एक अच्छा पॉजिटिव सेक्टर रहा है, जिसके अंदर हमने एक एज अ हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर भी माना गया है, जिसके अंदर हमने रिकवरीज देखी हैं। ओवरऑल क्योंकि इकोनॉमिक रिकवरीज वापस हो गई हैं और लोग वापस आ गए हैं, ये सेक्टर एक पॉजिटिव साइड पे ही रहेगा। पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस जरूर उसके ऊपर इफेक्ट करेंगी इन टर्म्स ऑफ द परचेजिंग एबिलिटी ऑफ पीपल, पर जो है फिर भी ये सेक्टर एक पॉजिटिव साइड में ही रहेगा, क्योंकि इकोनॉमिक रिकवरीज अंडर वे हैं और एक पॉजिटिव ग्रोथ दिखा रही हैं, जिसमें अगर कंजर्वेटिव एंड पे भी देखें तो 8.5% ग्रोथ रेट माना जा रहा है। यामिनी जी, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए भी लोगों का काफी आजकल ये उतार चढ़ाव तो नहीं कहेंगे, लोग उसमें अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी एक बहुत अच्छा विकल्प माना जा रहा है, जिसके तहत लोग जाना चाहते हैं और उसके अंदर पैसे की बचत भी और जो है वो पर्यावरण की तरफ ध्यान भी रखा जा रहा है, और क्योंकि सब्सिडी भी मिल रही है सरकार के द्वारा, वो एक अच्छा विकल्प माना जा रहा है। जी, दिल्ली से अनिल आहूजा है फोन लाइन पर। हेलो। हेलो जी अनिल जी, स्वागत है आपका प्रश्न पूछिए। गुड इवनिंग टीम। My question is, next month is going to be a result-oriented month for the companies. So, what will be your take for market? Will it go up or something? What is your opinion on that? Well, presently, since the recoveries are doing well and the overall markets are doing good, it should be a positive indicator from the earning sides for the corporates. There has been an increase in most products momentum in terms of their sales. Also, what would play an important role is how inflation acts on the supply chain and has an effect on the input costs. That will also get translated in next month. So there the results may get affected. But overall, I do see positive results in the earnings. Next caller is Ravi Narayan from Bhilai. Ravi ji. हाँ जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मार्केट मंत्रा। मैडम, मेरा सवाल ये है कि अभी चाइना के फॉरेन मिनिस्टर आके गए और रशिया के आए हुए हैं, और ये जो अमेरिका का हेजीमनी है नाटो के साथ मिलके, और हमारा जो उसका जो डॉलर की जो दादागिरी है, उसके अगेंस्ट में कुछ चल रहा है क्या? हम कुछ करने जा रहे हैं क्या? आपका क्या राय है इसमें, प्लीज? जी, मेरे ख्याल से फॉरेन पॉलिसी में बहुत स्पेसिफिकली बात की गई है, जहां पे रशिया यूक्रेन के वॉर को लेकर के है कि वी आर लुकिंग फॉर वर्ल्ड पीस एंड वी आर इंटरेस्टेड इन वर्ल्ड पीस। ओवरऑल अगेन माना जा रहा है कि हम कोई स्पेसिफिक एक्शन नहीं ले रहे किसी भी कंट्री के अगेंस्ट या किसी भी कंट्री के फेवर में। बायलैटरल टाइज पे एम्फेसिस है और ओवरऑल फॉरेन पॉलिसी में एक न्यूट्रल स्टैंड और एक वर्ल्ड पीस का स्टैंड रखा जा रहा है। जी, पनवेल से बाबू हैं फोन लाइन पर। हेलो बाबू, आपका प्रश्न क्या है? हाँ, मैं जानना चाहता हूँ, अपने भारत के पास फॉरेन एक्सचेंज डॉलर्स काफी ये है, तो रुपी डाउन क्यों हो रहा है? जी, भारत के पास 631 बिलियन यूएस डॉलर्स के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है, पर जो रुपी की एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन होती है वो डेली सप्लाई और डिमांड पे बेस होती है कि कितनी डॉलर की डिमांड है और कितनी सप्लाई है। और अभी इस समय जो एफआईआईज हैं वो पैसा निकाल रहे हैं, जैसे आपने इस न्यूज में सुना भी होगा, 1 लाख के करीब एफआईआईज ने निकाला भी है, जिसकी वजह से जो रुपी है वो डेप्रिशिएट कर रहा है। नेक्स्ट कॉलर इज विपिन सागर फ्रॉम मध्य प्रदेश। विपिन जी। जी सर, मैं विपिन सागर से। सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि मैंने कहीं पर विज्ञापन देखा था कि कुछ ऐप्स हैं जो मतलब विदेशों में निवेश करने के लिए बताते हैं कि इसको डाउनलोड कर सकते हैं, तो इनके बारे में पूर्णतः जांच कहाँ से कैसे कर सकते हैं?
जी देखिए, ऐप्स ज्यादातर जो एक अच्छी जगह पे मिलते हैं, अगर आप देखें किसी सर्च इंजन के प्ले स्टोर पे मिलें या कहीं पे मिलें, वो ऐप्स ज्यादातर माने जाते हैं कि ठीक होते हैं। अगर आप किसी भी वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे तो वो ऐप्स के साथ कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, जैसे वायरस आ सकता है या हैकिंग हो सकती है। तो कहीं जाने माने सर्च इंजन के जो स्टोर्स होते हैं उनसे ही अगर आप ऐप लें, और जो वेल नोन या गवर्नमेंट के ऐप्स होते हैं उन्हें आप डाउनलोड करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जी हाँ, साथ में उसमें ऐप्स के बारे में सारी जानकारी डाउनलोड करते समय मिल भी जाती है। और रुपए की बात करें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज डॉलर के मुकाबले 4 पैसे मजबूत हुआ। रुपया घरेलू मुद्रा बाजार में 76 रुपए 17 पैसे प्रति डॉलर के कारोबार के साथ बंद हुआ। 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक दिन के कारोबार में 0.45% की बढ़त से 99.24 पर था। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के अप्रैल के वायदा कारोबार में सोना आज 215 रुपए की गिरावट पर रहा और ये 51,660 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर दर्ज हुआ। वहीं चांदी मई के वायदा कारोबार में 505 रुपए घटकर 68,265 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज हुई। वैश्विक बाजारों की बात की जाए तो सोना लुढ़ककर $1,933.20 प्रति औंस के स्तर पर रहा, जबकि चांदी आज दिन के कारोबार में बढ़त से $25.20 प्रति औंस के स्तर पर दर्ज हुई। And in some other stories, the government has said that the geopolitical tension between Russia and Ukraine has led to global supply disruptions, resulting in steep increase in global commodity prices, including prices of crude oil, gas, edible oils, fertilizers, among others. In a written reply to the question in the Lok Sabha, Minister of State for Finance Pankaj Chaudhary said that the government is closely monitoring the global price movements and their impact on the country's economy through trade. He said to ensure security of crude supplies and to mitigate the risk of dependence on crude oil from a single region, oil public sector undertakings have diversified its petroleum basket and are procuring crude from countries located at various geographical locations like West Asian countries, Africa, North America and South America. The minister said that in addition, Centre is also committed to supporting initiatives for releases from strategic petroleum reserves for mitigating market volatility and calming the rise in the crude oil prices. And Brent crude prices are off a little bit overnight. However, it still hovers around $116 per barrel levels. Crude prices have witnessed 8 to 11% gains in the previous week. Shanghai has had an immense lockdown, which has led to a drop in fuel demand. And in intraday trade, Brent crude was trading around $116.10 per barrel, while the WTI crude prices were at $108.90 per barrel. And our next caller is Ravi from Mumbai. Ravi, welcome. Ravi, can you hear us? It seems we have lost Ravi. We'll connect to him if at all we can. So, Yamini, this oil thing, and also, as we discussed some time back, that the Shanghai lockdown, it may see a decrease in demand of crude. So, how do you see this panning out in the near future? Well, overall, it does have an effect over the overall demand of the oil, and thereby the crude oil prices are likely to stabilize in that fact that the demand may come down. But to say that it will directly impact the demand may not be true, because overall economic recoveries have already begun in most of the world markets. और यामिनी जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने श्रोताओं के प्रश्नों का समाधान किया, उन्हें उत्तर दिया। उम्मीद करते उन्हें काफी फायदा होगा इससे। धन्यवाद। और चलने से पहले अंत में मुख्य समाचार एक बार श्रोताओं आपको हम फिर से सुना देते हैं। घरेलू शेयर बाजार में आज बढ़त का रुख देखा गया। सेंसेक्स चढ़कर 57,600 के आसपास और निफ्टी 17,250 के ऊपर जाकर बंद हुआ। वैश्विक शेयर बाजारों का आज मिला जुला कारोबार रहा और ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत में गिरावट रही, लेकिन $116 प्रति बैरल से ऊपर रहे। Key domestic stocks witnessed modest gains. Sensex closes near 57,600 points. Nifty settles above 17,200. Global stocks trade mixed, and Brent crude prices slip but remain above $116 per barrel. And that's it in this edition of Market Mantra. From the entire team here, it's goodbye till we meet again the next time. Market Mantra.